Hello guys, today I am going to explain the political science, second part of the political science and first chapter of the political science of class 12th. As you know, there are the two parts, two books in political science of class 12th. Number 1 is world politics, part A, part B is the Indian politics, Indian political system. So in this chapter, I will explain the challenges that was India going to face, challenges of nation building. As you know, India got independence in 1947, but it became a nation on 26 January 1950 when our constitution was adopted. तो देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन नेशन जो एक डिक्लेयर किया गया जो बना विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनफोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो नेशन जब हमारा बना तो उसके सामने कौन कौन सी चैलेंजेस थी और इनको हमारे लीडर्स ने कैसे फेस किया और कैसे इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन, एक जो है यूनाइट फॉर्म में एक नेशन बना के तैयार किया इतना बड़ा. तो एज यू नो इंडिया गॉट मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 14-15 अगस्त midnight India got independence. Or our prime minister that time was Jawaharlal Nehru. He was the prime minister of that time. He addressed the special session of the Constituent Assembly that time. As you know, Constituent Assembly was working just like the Parliament. So in that special session, he gave a special speech. और ये स्पीच जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है. जो फर्स्ट स्पीच दैट वाज मेड बाय जवाहरलाल नेहरू. इट इज़ नोन एज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कि इंडिया वाज गोइंग टू मेक इट्स ओन डेस्टिनी, अपनी किस्मत को बनाने जा रहा था. तो वन साइड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पीपल वर हैप्पी, देयर वाज होप, there was freedom, there was celebration, but other side the people were suffering a lot because that time India was divided. There was partition of the country between India and Pakistan. So people on the borders of both the sides, they were suffering a lot, especially the minorities. So that time India got independence. This I am telling you कि when India got independence, there were three challenges that were faced by the country, the new nation, independent nation, और these were 3D. इनको हम शॉर्ट में 3D कहते हैं. डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. accommodate diversity, establish democracy, development of the country, economic development. Accommodate diversity, as you know, India is a country of mega biodiversity. It is a mega diversity. There are differences in landscape, differences are there in क्या कहते हैं weather conditions, differences in the cultures, difference in the languages, in religions, regions. So to accommodate this, it was a big challenge before the Indian leaders. Second word, establish democracy. As you know, India became independence, but Indian government was not familiar with the system of democracy. हमारे देश में डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं था. People were poor, people were ignorant, people were illiterate, so they did not know what is democracy, what is the system of democracy, what are the elections. So to establish democracy, it was a very big task. बहुत बड़ा काम था इंडियन लीडर्स के सामने. और थर्ड वाज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एज यू नो, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ सुई भी, पिन भी नहीं बनती थी, और पिन से लेकर के एरोप्लेन तक हमें ब्रिटेन से मंगाने पड़ते थे. तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो these were three challenges that is known as 3D. Parliamentary form of the government, as you know, India decided the parliamentary form of government, कि हमारे यहाँ जो है वो parliamentary form of government रहेगी, because we were familiar with the parliamentary system of government, or because in India there was the British rule.
इसके बारे में क्लास 10 में आप 11th में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेलिब्रेशन। अब आप देखिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो डिस्प्लेसमेंट था कि जब पार्टीशन हुआ तो बोथ द साइड्स देयर वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। लाखों लोग का जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान गए, और टू रिहेबिलेट देम इट वाज अ बिग चैलेंज, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। एज यू नो, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी by the Muslim League, Muhammad Ali Jinnah led by it. तो as you know that time टू नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में दी गई थी कि इंडिया देयर आर टू रेसेस, दे कुड नॉट लिव टुगेदर, सो देयर इज अ नीड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स, दैट इज पाकिस्तान, एंड इंडिया फॉर नॉन मुस्लिम्स। इन हिस्ट्री, इन पॉलिटिक्स, इट इज नोन एज टू नेशन थ्योरी। रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा। कांग्रेस वॉज नॉट रेडी, बट एट लास्ट it was decided by the government, by the Congress leaders. लास्ट तक गांधी जी अपोज कर रहे थे, लेकिन there was no any other option, so it was decided to divide the country. लास्ट में यही सोचा गया कि कंट्री का पार्टीशन ही किया जाए। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, अब एक प्रोसेस अपनाया गया, क्योंकि आपको मालूम है कोई पार्टीशन वाज वेरी पेनफुल, ट्रेजिक, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका कोई प्लान नहीं था। ये जो डिवीज़न हुआ है, जो पार्टीशन कंट्री का हुआ है, उसके लिए लास्ट तक कांग्रेस एग्री नहीं रही थी। तो जब रेडी नहीं थी तो कोई प्लान नहीं बनाया गया था, बट देयर वर, आपको मालूम है, कम्युनल राइट्स, दंगे होने लगे, और 16 as you know August 1946 there were direct action they celebrated that was organized by Muslim League in Calcutta, or thousands of Hindus were killed on the roads, or there was so every action has a reaction। इसका असर देश के दूसरे भागों में पड़ा, पंजाब, सिंध, वहाँ भी इसी तरीके दंगे होने लगे। तो at that time there was no other option, so Congress also decided to divide the country. Most important जो problem थी that it country was facing that time, no single belt of Muslim majority। हमारे देश में कोई ऐसी बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की जो एक साइड से कट करके दे दिया जाए उन्हें, क्योंकि देयर वाज द मिक्स्ड पॉपुलेशन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे वर लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। All Muslim leaders, next, all Muslim leaders, they also did not in favor of partition। कुछ कांग्रेस के ऐसे भी मुस्लिम लीडर्स थे जो पार्टीशन नहीं चाहते थे, और जैसे फारूक अब्दुल्ला, और हम कह सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद, they were not in favor। और नेक्स्ट, there were only two Muslim majorities, बंगाल एंड पंजाब। वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल, दो ऐसे पार्ट थे जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। तो लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि इन दो पार्ट को, पंजाब को डिवाइड कर दिया गया, सिंध और वेस्टर्न पंजाब का जो पार्ट था वो वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया जिधर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थी, ईस्ट बंगाल, उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन देयर वाज नो प्लान कि कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाए, कैसे जो माइनॉरिटीज़ में रहते हैं इधर से उधर ले जाया जाए। और जब इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी तो क्या हुआ, देयर वर कम्युनल राइट्स बोथ द साइड्स, लूट मार मच गई, लोगों को जान बचा करके भागना पड़ा, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ करके भागना पड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ करके भागना पड़ा, और देयर वर ए लॉट ऑफ सफरिंग बिफोर द माइनॉरिटीज़ बोथ द साइड्स। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम सफ़र कर रहे थे, और इंडिया इन सम पार्ट देयर वर मुस्लिम्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, जो हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े, वेरी बैड इम्पैक्ट्स
on politics in history also. As you know, this partition was the largest unplanned tragic transformation of population in world history. इंडिया की हिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो ये पार्टीशन किया गया था, दैट वाज विदाउट प्लान. इट वाज वेरी ट्रेजिक बिकॉज वर कम्युनल राइट्स, दंगे हो रहे थे. तो इस तरह की जो पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र हुआ वो वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ट्रेजिक अनप्लान्ड नहीं हुआ. कहते हैं ट्रेन्स जो पाकिस्तान से इंडिया आती थी और वो पूरी डेड बॉडी भर भर करके आती थी, सेम ऐसा इधर से भी होता था. तो किलिंग ऑफ द पीपल बोथ साइड्स इन द कंट्री, और देयर वर 3 cities दैट बिकेम द कम्युनल जोन्स. और 3 ऐसे शहर थे जहाँ सबसे ज़्यादा मारकाट हो रही थी हिंदू मुस्लिम में, सिख में, लाहौर, अमृतसर एंड कलकत्ता. तो एट दैट टाइम सफ़र कौन कर रहा था? द पीपल हु आर माइनॉरिटीज़. जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान में, और सब मुस्लिम्स इन इंडिया. और मोस्ट सफरर दे वर द वीमेन एंड चिल्ड्रन. जब ये सिचुएशन आती थी कि लोगों को भागना था, कहते हैं लाहौर का लास्ट डे तक डिसीजन नहीं हो पाया था ये इंडिया में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा. तो वहाँ के लोग बेचारे कंफ्यूज थे कि हमें किधर को जाना है. दिस वाज द रीज़न, अनप्लान्ड वाज द सिस्टम. तो स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन सफर्ड अ लॉट. सबसे ज़्यादा जो सफ़र होने वाले थे वो औरतें और बच्चे थे. और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनको क्या किया गया, फैमिली के द्वारा बहुत से लोगों ने फैमिली ऑनर के कारण अपने घर की औरतों को मार दिया, बच्चे बिछुड़ गए. और कहते हैं मेनी वीमेन, उनके साथ रेप किया गया, उनका जो है रिलीजन चेंज किया गया, और बहुत ही दैट वाज वेरी ट्रेजिक कंडीशन इन स्पेशली पाकिस्तान. According to estimate of the government, 80 lakh people migrated and 10 lakh people killed. और कुछ लोग कहते हैं कि देयर वाज द माइग्रेशन ऑफ करोड्स पीपल बोथ द साइड्स, और 10 to 20 lakh पीपल वर किल्ड. इतिहास में, हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी भी किसी भी कम्युनल राइट्स में इतने लोग नहीं मरे होंगे. इसीलिए इसको कहा जाता है मोस्ट अनप्लान्ड ट्रेजिक. सम ऑर्गेनाइजेशन when India was divided into India and Pakistan declared itself as a Muslim nation. जब पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम नेशन डिक्लेयर कर दिया तो देयर वर सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, और स्पेशली नेम लिया जाता हिंदू महासभा. इट डिमांडेड हिंदू नेशन. इसने कहा कि जब वो पाकिस्तान मुस्लिम नेशन बन गया है, वो मुस्लिम्स के लिए स्पेशली है, तो इंडिया को हिंदू नेशन बना दिया जाए. But Congress was not ready because the most of the Congress leaders were the secular that time, and so इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई महासभा की. तो that was the big problem of the partition that India faced. ये ऐसी समस्या थी कि इंडिया को फेस करना पड़ा. अगर हम सोचते हैं, अगर आप सीन देखिए आपके सामने, और आप देखेंगे कि कितना ट्रेजिक था. फिल्म भी बनाई गई हैं इस पर. अब आता है सेकेंड चैलेंज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब देखिए इंडिया के सामने इंटीग्रेशन के लिए, अकोमोडेट डाइवर्सिटी के लिए, अब प्रिंसली स्टेट को भी इंटीग्रेट करना था इंडियन यूनियन. दैट टाइम इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया, देयर वर इन 11 प्रोविंसेस एंड इट वाज कवरिंग 2/3 पार्ट ऑफ द कंट्री. जो ब्रिटिश इंडिया था, जहाँ ब्रिटिश रूल था इंडिया में, वो 2/3 पार्ट को कवर करता था इंडिया की, और वहाँ 11 प्रोविंसेस थे. तो ये तो डिवाइड कर दिया गया इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान. बट देयर वर प्रिंसली स्टेट्स दैट कवर 1/3 एरिया ऑफ द कंट्री. When India got independence, there were more than 565 princely states. So it was a great problem to integrate these princely states to Indian Union. बहुत बड़ी समस्या थी कि इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को और कैसे ऐड किया जाए इंडियन यूनियन में. और कुछ तो बहुत बड़े थे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स वर जूनागढ़, त्रावणकोर, निज़ाम हैदराबाद, नवाबा भोपाल, कश्मीर, सो मैनी. और इट वाज अ बिग प्रॉब्लम बिफोर द गवर्नमेंट
कि इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने जो प्लान दिया था कि या तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते थे या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे या इंडिपेंडेंट रह सकते थे, तो मोस्टली इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे गवर्नमेंट्स अप्रोच। तो उस समय सरदार पटेल प्लेड अ मेजर रोल टू यूनाइट द कंट्री एट दैट टाइम। ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको ये काम दिया गया सरकार के द्वारा कि आपको इन सबको इंटीग्रेट करना है। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स और मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स दैट साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये मतलब था कि इंटरनल पार्ट उन प्रिंसली स्टेट्स के पास था और एक्सटर्नल इंडियन गवर्नमेंट के पास था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन लोगों ने रिफ्यूज़ किया साइन करने से। सो द सरदार पटेल दे हैड टू प्ले द डिप्लोमेटिक एंड फर्म डिसीजन फॉर दैट दीज बिग प्रिंसली स्टेट्स, और ये सबसे बड़े थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, मणिपुर। हैदराबाद, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हैदराबाद। हैदराबाद, as you know, it was a princely state और it was the largest princely states of India, और इसको इंडिया में यूनाइट करना ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम था, वहाँ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी ऑफ हिंदू की थी, जैसे कि जूनागढ़ में भी वहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, किंग वहाँ का नवाब था और पॉपुलेशन जो थी हिंदूज थी, वो कश्मीर ज्वाइन करना चाहता था। सेम कंडीशन वाज इन हैदराबाद आल्सो। द नवाब ऑफ हैदराबाद वाज कॉल्ड निज़ाम, इसको टाइटल निज़ाम की दी गई थी, एंड ही वाज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम। वो जो है उस समय दुनिया के जो सबसे अमीर देश थे उनमें से एक था, आप फोटो में पिक्चर में देख सकते हैं। और ही वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट, बट इन प्रेशर ऑफ सरदार पटेल ही साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन नवंबर 1947 में उसने साइन किया कि हम अभी तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। उसी समय देर वर प्रोटेस्ट बाय द पीजेंट्स, कुछ हिंदू पीजेंट्स जो थे उन्होंने इनके अत्याचारों से परेशान होकर के और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और नवाब ने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया जिनको रजाकर्स कहते थे, और इन लोगों ने हिंदूज जो पीजेंट्स थे उन पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। मेनी वर मर्डर्ड, वीमेन वर रेप्ड एंड दे वर लूटेड आल्सो। चारों तरफ अत्याचार हो रहा था और इन रजाकर्स के द्वारा। और उसी समय इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड, सरदार पटेल डिसाइडेड टू सेंड इंडियन आर्मी इन सितंबर 1948। इंडियन आर्मी भेज दी गई, रजाकर्स को डिफीट किया गया और एट लास्ट हैदराबाद वाज कंट्रोल्ड बाय इंडियन आर्मी, और नवाब वाज प्रेशर्ड और टू साइन द मर्जर एग्रीमेंट, और हैदराबाद इंडिया में मिला लिया गया। अब मणिपुर कहते हैं जहाँ के राजा थे महाराज बोधि चंद्र सिंह। ही वॉज द किंग ऑफ मणिपुर। ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे इन्होंने साइन कर लिया था। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस वर हेल्ड इन मणिपुर, और दैट टाइम मणिपुर इन 1948 द इलेक्शंस वर हेल्ड, और मणिपुर पहला स्टेट ऐसा था जिसने जो है यो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को मान्यता थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझते हैं कि जहाँ पर सभी एडल्ट्स को राइट वोट होता है, और वहाँ पे इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, लेकिन जनता जो थी वो इंडिया ज्वाइन करना चाहती थी। एट लास्ट किंग वाज फोर्स्ड एंड ही हैड टू साइन ऑन द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, और सितंबर 1949 में मणिपुर इंडिया का एक पार्ट बन गया, इंडिया में ज्वाइन हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब एक समय था, अब ये तो था जो हमारे 565 स्टेट्स थे मोस्टली जो है सबको मर्ज कर लिया गया था, केवल कश्मीर बचा था। कश्मीर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने ली थी, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिप्लोमेसी नहीं दिखा पाए और कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स थी वो बनी रह गई।
नाउ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब जब सबका मर्जर हो गया, अब इंडियन यूनियन को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, स्टेट्स कैसे बनाए जाएं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया था कि इंडिया जो है वो एक फेडरल स्टेट रहेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ 1920। स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज बेस्ड बनेंगे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, चारों तरफ कम्युनल राइट्स हुए, दंगे हुए रिलीजन बेस पर, कंट्री का डिवीज़न हुआ, तो इट वाज द चेंज्ड कि लैंग्वेज बेस पर अब स्टेट्स नहीं बनेंगे। लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। कांग्रेस के नेता ये सोचते थे अगर लैंग्वेज बेस बनाया गया तो इससे क्या होगी, अलग अलग राज्य जो है देश की मांग करेंगे और हमारा देश टूट सकता है। चारों तरफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, क्योंकि जो लोकल कांग्रेस के लीडर्स थे वो लैंग्वेज बेस ही चाहते थे। मद्रास प्रोविंस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, उसको लीड किया था पोट्टी श्री रामुलु, आप सामने देख सकते हैं। ये गांधीयन लीडर थे और इन्होंने स्टार्टेड इन डेफिनिट फास्ट फॉर 56 डेज। उन्होंने भूख आंदोलन कर दिया, हड़ताल कर दी और 56 डेज तक कुछ नहीं खाया और उनकी डेथ हो गई। और जब पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हुई तो प्रोटेस्ट और साउथ में बढ़ गए और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ा आंध्र प्रदेश दिसंबर 1952। और पहला स्टेट जो लैंग्वेज बेस पर बनता है इंडिया में वो था आंध्र प्रदेश, दिसंबर 1952। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। व्हेन आंध्रा बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, देयर वर मेनी many protests that were also started in different parts of the country on demanding the formation of states on the language base. तो linguistic states were formed. तो State Reorganization Commission was set up in 1953 और ये बनाया गया कि कैसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कि कैसे लैंग्वेज बेस पर स्टेट बनाए जाएं। और इट गिव इट्स रिपोर्ट इन 1956 और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ उसी आधार पर 1956 में। और इंडिया में 14 स्टेट्स वर फॉर्म्ड एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर आल्सो मेड। हमारे यहाँ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वो फार्म की गई और इस तरीके से देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया। हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया बनाए गए। कश्मीरी बोलने वालों के लिए कश्मीर, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, आसामी बोलने वालों के लिए आसाम, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु, ऐसे ही डिवाइड किया गया है। और इसका मेन रीज़न ये भी था कि वी मेंटेन्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि आपको मालूम है इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। तो वहाँ पे यूनिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए हमारे जो लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, दे मेड अ ग्रेट एफर्ट्स और दे वर सक्सेसफुल टू मेक इंडिया अ नेशन। और नाउ इंडिया हैज़ बिकम अ ग्रेट नेशन। हम कह सकते हैं कि इंडिया एक ग्रेट नेशन बन गया है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे यहाँ यूनिटी है। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि एक तरफ इतनी डिफरेंसेस हैं कल्चर्स में, लैंग्वेजेस में, रिलीजन में, कास्ट में, रीजन्स में, और अदर साइड आप कह सकते हैं कि हमारी यूनिटी भी मेंटेन है, क्योंकि हमारे यहाँ मोर पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स आर गिवन लेस पावर्स। They cannot demand for freedom, independent to leave the federation. इसीलिए हमारे यहाँ है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। थैंक यू, हैव नाइस डे। और अगले चैप्टर में वीडियो में हम मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।